हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू दी चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम्स के जीएस वाले पेपर में आ चुके हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरी देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इन द एरियाज कवर्ड अंडर द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 व्हाट इज़ द रोल और पावर ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 कि ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। यस। उसके बाद है कि ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। यस, इट इज़ आल्सो करेक्ट। ठीक है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मटेरियल एनी मिनरल इन दिस शेड्यूल्ड एरियाज। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड for the extension of the provisions of part 9th of the constitution relating to panchayats in the scheduled areas. ठीक है, some provisions under the following are number 1 के some provisions include the following. Number 1 कि every gram sabha shall be competent to safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their culture, identity, community resources and the customary mode of dispute resolution. ठीक है, number 2 कि the recommendations of the Gram Sabha or the panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting license or mining lease for minor minerals in the scheduled areas. ठीक है, उसके बाद है कि the prior recommendation of the Gram Sabha of the Gram Sabha or the panchayats at the appropriate level shall be made mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction. ठीक है, the above provisions mentions only minerals, that is iron, copper, zinc etc. and not any mineral. ठीक है ना, हाँ कि the above provisions mentions only minor minerals. ठीक है, not any minerals but minor minerals. ठीक है ना, जैसे iron, copper, zinc etc. then next point है इसमें कि while endowing panchayats in the scheduled areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a state legislature shall ensure that the panchayats at the appropriate level and the gram sabha are endowed specifically with number 1 the power to enforce prohibition or to regulate or restrict the role or and consumption of any intoxicant. ठीक है, number 2 the ownership of minor forest produce. Number 3 the power to prevent alienation of land in the scheduled areas and to take appropriate action to restore any unlawful alienated land land of a scheduled tribe ST. Next question is the distribution of powers between the central and the states in the union and the Indian constitution is based on the scheme provided in. आंसर है कि it which is provided in Government of India Act 1935. ठीक है, डिटेल में देखते हैं। Government of India Act 1935 provided the formula for the distribution of powers between the central and the states, and after independence this formed the basis for the distribution of powers between the union and the states in the Indian constitution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट विल फॉलो इफ़ अ मनी बिल इज़ सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, तो आंसर है कि द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द प्रोसीजर टू पास द मनी बिल इज़ मेंशन इन आर्टिकल 109 आर्टिकल में मेंशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सच अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. After being passed in the Lok Sabha, the Rajya Sabha then has three options. Number one, it can either pass the bill, in which case it goes to the president for his assent. ठीक है. Number second, it can keep the bill with itself, in which case after 14 days the bill is deemed to be passed by both houses in the form
in which it was passed by the Lok Sabha. ठीक है. In case the Rajya Sabha returns the bill to the Lok Sabha with its recommendations, the Lok Sabha can either accept the recommendations or reject them. ठीक है. The bill is deemed to be passed by both houses in the form in which it was passed by the Lok Sabha. ठीक है. हाँ. Thus, Rajya Sabha has very little powers in the case of money bill. There is no need for a joint sitting when Lok Sabha agrees, even if the Rajya Sabha disagrees with any of the provisions. तब भी जो है जॉइंट सिटिंग नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट बतानी है. करेक्ट सिर्फ एक ही है, वो है कि नो प्रोसीजर हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्राम हीज और हर पोस्ट. यस, इट इज़ करेक्ट. ठीक है ना. तो बाकी कुछ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि इन इंडिया सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट एट द सेम टाइम. नो, इट कैन बी अपॉइंटेड. ठीक है. देन एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ये भी इनकरेक्ट. ठीक है. देन इन द केस ऑफ द यूटी हैविंग अ लेजिस्लेटिव सेटअप, चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट. ये भी इनकरेक्ट. डिटेल में देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट. ठीक है. किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 153 के मुताबिक. ठीक है ना. एक बंदे को दो या दो से ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जाएगा. ठीक है ना. हाँ, उसके बाद देखते हैं कि जजेस ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. दफ इन द केस ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट शुड आल्सो कंसिडर द एडवाइस ऑफ द गवर्नर. ठीक है. Then, in case of a union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the president and not the lieutenant governor. ठीक है. This is very important कि in the case of union territory UT के केस में having a legislative setup, the chief minister is appointed by the president and not the lieutenant governor. कि वो वाली UT जिसमें legislative assembly है, उसमें जो chief minister बनेगा उसको president appoint करेगा, ना कि lieutenant governor. ठीक है. हाँ. देन उसके बाद है कि देर इज़ नो प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अप्रूवल ऑफ द रिमूवल ऑफ द गवर्नर. ठीक है ना. दफ ऑर्डिनरली ही हैज़ अ टेन्योर ऑफ 5 years. ही कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बिफोर दैट इफ़ द प्रेसिडेंट सो विशेस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर. आंसर है कि दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ठीक है. डिटेल देखते हैं कि द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. 93 सीट्स इन द असेंबली वर आल्सो अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है. 93 seats. Then which were to be filled by nomination by the heads of the princely state. ठीक है. However, the nominated seats remained unfilled. The nominated seats remained unfilled as the princely states stayed away from the constituent assembly. ठीक है. कि जो nominated seats थी ये unfilled रही क्योंकि जो princely states थी वो इस constituent assembly से दूर रही जब इंडिया का constitution बन रहा था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है ना. 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं. ठीक है. पहली स्टेटमेंट बोलता है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन द लोकसभा ओनली. ये भी इनकरेक्ट है. उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है कि इफ़ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस in the federal character of the constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the states of India. ये भी इनकरेक्ट. ठीक है. डिटेल में देखते हैं क्या आंसर इसका. कि a constitutional amendment can be initiated in any house of the parliament. ठीक है. हाँ. उसके बाद है कि if certain federal features of the constitution are to be amended, then apart from parliamentary approval, they require to be ratified by the legislature of half of the state. State legislature of half of the state. ठीक है ना. Also remember that constitutional amendment bill do not require prior approval of the president and they cannot be passed by a joint sitting of both houses of the parliament. ठीक है. हाँ. कि जो constitutional amendment bills हैं उनको प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट की नहीं चाहिए. ठीक है. और ऐसे जो constitutional amendment bill हैं
तो दे कैन नॉट बी पास्ड बाई जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना, तो 4 स्टेटमेंट हैं जिनमें से 3 करेक्ट हैं। ठीक है ना, तो एक इनकरेक्ट है। वो 4 जो करेक्ट हैं उसमें ये है, हाँ क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, हाँ तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं कि नंबर 1 कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, यस करेक्ट। उसके बाद है कि अटॉर्नी जनरल कैन बी ए मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द लोकसभा, यस ये भी सही। उसके बाद अटॉर्नी जनरल स्पीक इन द लोकसभा, यस ये भी सही। एक और है कि ही कैन वोट इन द लोकसभा, नो इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, डिटेल देखते हैं आगे। आर्टिकल 88 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो 88 है 88, ठीक है ना। Article 88 of the Constitution provides that the Attorney General has the right to speak in and take part in the proceedings of either House of the Parliament or a joint sitting of the 2 houses or any of their committees. ठीक है, however he does not have the power to vote in such proceedings according to the same article, Article 88 के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट और डू नॉट फाइंड द मेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन है आपके पास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल। ठीक है, तो करेक्ट है ऑल ऑफ दी अबाउट। ठीक है ना, हाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डू नॉट फाइंड द मेंशन ऑफ द मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, के जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है एनडीसी, ना तो इसका जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना ही प्लानिंग कमीशन का और ना ही जोनल काउंसिल्स का। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि नन ऑफ द बॉडीज मेंशन अबव आर फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्लानिंग कमीशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आर नॉट इवन स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन और एनडीसी है ये इवन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ भी नहीं है। ठीक है ना, एंड हैव बीन सेट बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ 1950 एंड 1952 रिस्पेक्टिवली। ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई हैं। कौन सी? ये जो प्लानिंग कमीशन 1950 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से और एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ठीक है ना, हाँ देन द जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड वर सेट अप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। जोनल काउंसिल जो हैं ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं क्योंकि ये एक्ट के तहत बनाई हैं जिसका नाम है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। उसके तहत ये जोनल काउंसिल बनाई गई हैं जो कि स्टैट्यूटरी नेचर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ठीक है, हाँ कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं आगे, तो करेक्ट है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी की स्टेट की ज़रूरत नहीं है, सेंटर ऐसे भी लगा सकेगा अगर इंटरनेशनल कोई ट्रीटी लागू करनी है। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि आर्टिकल 253, आर्टिकल 253, ठीक है ना, आर्टिकल 253 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है, आर्टिकल 253 में in such a case the parliament is not bounded by the usual division of legislative subjects between the union and the states and does not need the consent of any of the states concerned. ठीक है, yes. Next question is के according to the constitution of India which of the following are fundamental for the governance of the country. ठीक है, हाँ ऑप्शन से दिए हुए फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस आर्टिकल 37 सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट्स बट आर नॉनथलेस फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये आर्टिकल 37 कहता है। ठीक है, हाँ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन एनी कोर्ट बट आर नॉनथलेस फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट में लेकिन ये कंट्री की गवर्नेंस में फंडामेंटल हैं। ठीक है, आर्टिकल 37 कहता है इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट दीज प्रिंसिपल्स दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन द मेकिंग ऑफ लॉज। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट इनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज PESA एक्ट इन 1996 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और वो ये है कि टू क्रिएट ऑटोनमस रीजन, हाँ तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है इस PESA एक्ट 1996 का। ठीक है ना, PESA मीन्स
पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पीसा एक्ट 1996, ठीक है। ये ऑटोनमस रीजन बनाना इसका जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसकी क्या ऑब्जेक्टिव है, उसमें ये है कि टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, पीसा एक्ट 1996 में कि टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नेंस, टू रिकॉग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स एंड टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। ये पीसा एक्ट में आता है। डिटेल में देखते हैं आप, ठीक है ना। द पीसा कैपिटल में लिखना PESA, ठीक है ना। द पीसा एक्ट वाज इनैक्टेड बिकॉज द प्रोविजंस अंडर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट डिड नॉट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड टू द 5th शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। पीसा एक्ट इसलिए जो है वो इनैक्ट करा गया था क्योंकि जो 74th और 75th अमेंडमेंट एक्ट थे वो ऑटोमेटिकली जो है 5th शेड्यूल्ड एरियाज में जो है अप्लाई नहीं होते थे, ठीक है ना। हाँ, 5th शेड्यूल जो है ना उसमें कुछ एरियाज दिए गए हैं ट्राइबल एरियाज, तो वहाँ पे अप्लाई नहीं होते, इसलिए पीस एक्ट बनाया, ठीक है ना, ताकि ये जो म्यूनसिपल और पंचायत के 73rd 74 अमेंडमेंट है इनको करा जाए अप्लाई। हाँ, इट वाज दिस पीस एक्ट, ठीक है ना, इट वाज मेंट टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, local self-governance in the scheduled areas. The act was also meant to recognize the traditional rights of the tribal. हाँ, उसके बाद देखते हैं कि दिस एक्ट डज नॉट हैव एनी प्रोविजंस फॉर क्रिएटिंग एनी ऑटोनमस ऑप्शन रीजन, ठीक है। द एक्ट ट्राई टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव बाय गिविंग द ग्राम सभा अंडर दिस एक्ट द पावर्स टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनर मिनरल्स एट्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का जो एक्ट था जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 विच शैल बी द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स आर बोथ, ठीक है। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका कि ग्राम सभा, ठीक है ना। हाँ, डिटेल देखते हैं कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। सम ऑफ द राइट्स प्रोवाइडेड इन द एक्ट आर द राइट टू लिव इन द फॉरेस्ट, कम्युनिटी राइट्स, राइट टू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट्स टू कन्वर्ट पार्टास टू लैंड टाइटल्स एट्सेट्रा, ठीक है। द एक्ट दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ठीक है ना। द एक्ट कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 इसकी जो सेक्शन 6 है, ठीक है ना, उसके मुताबिक द ग्राम सभा हैज़ बीन गिवन द अथॉरिटी टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दिस राइट्स, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना कौन सी सही है, ठीक है ना। 3 स्टेटमेंट हैं टोटल, उनमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं और वो हैं कि दिस हाँ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स स्क्रूटिनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यस, ये भी सही है। उसके बाद है कि दिस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। उसके बाद एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, बिकॉज द पब्लिक अकाउंट कमेटी कंसिस्ट ऑफ ओनली 22 मेंबर्स, सिर्फ 22 मेंबर्स होते हैं, ऑफ विच 15 आर फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। 22 होते हैं, ना कि जो हैं 25 होते हैं, ठीक है। देन दिस पैक कमेटी, PAC पैक कमेटी या शॉर्ट में बोलते हैं इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट पैक, ठीक है ना। हाँ, कि हाँ द पैक एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विच आल्सो इंक्लूड्स द एग्जामिनेशन ऑफ द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ, तो टोटल हैं 3 स्टेटमेंट, करेक्ट सिर्फ 2 हैं और वो हैं कि नंबर 1 कि मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट और मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, यस। उसके बाद है मेंबर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, यस, ये भी सही। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट, नो, इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। डिटेल में देखते हैं इसके बारे में। In the parliamentary system as existing in India, members of the cabinet have to be the members of the parliament.
If they are not members of the parliament at the time of the appointment as cabinet ministers, then they have to do so in 6 months. ठीक है, yes. आर्टिकल 75 क्लास 3, ठीक है, हाँ हाँ, एज पर आर्टिकल 75 क्लास 3, ठीक है, मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोकसभा, ठीक है, कि आर्टिकल 75 क्लास 3 में है कि मेंबर्स, ये जो मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है, हाँ, आर्टिकल 75 क्लास 3। हाँ, उसके बाद देख लेते हैं कि कैबिनेट इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हाँ, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट विच इज़ हु इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। टोटल 3 स्टेटमेंट है, उनमें से 2 सही हैं और वो हैं कि द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ये सही है। उसके बाद है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, यस ये भी सही है, ठीक है। एक इनकरेक्ट है, उसमें लिखा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, ये इनकरेक्ट थी बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लास 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट द पार्लियामेंट, ठीक है ना। पूरी पार्लियामेंट नहीं, क्योंकि उसमें राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट आ जाते हैं, सिर्फ लोकसभा में के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लास 2 द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये आर्टिकल 75 क्लास 2 में है, ठीक है। देन आर्टिकल 78 जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 78 प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन, ये आर्टिकल 78 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट है, उसमें 2 सही हैं, वो हैं कि द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज़ केप्ट इन द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस ये सही है। उसके बाद है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, यस ये भी सही है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ एन ऑर्गन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एंड नॉट इट्स ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद ये है कि शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एज इट्स 20th आइटम इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, हाँ, क्योंकि 7th शेड्यूल में ना ये कंकरेंट लिस्ट वगैरह, ठीक है ना। तो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एज इट्स 20th आइटम इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। देन और वो जो एक स्टेटमेंट थी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स द पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये आर्टिकल 243 क्लास जी में मेंशन है, ठीक है ना। आर्टिकल 243 क्लास जी में मेंशन है, ठीक है, जो कि हाँ जो कि 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, उसमें ऐड करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, तो 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। नंबर 1 कि द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, सॉरी इनमें एक स्टेटमेंट गलत है, एक सही है, ठीक है ना। पहले स्टेटमेंट बोलता है कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट हाउस, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसमें बोलता है कि वाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यस वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड बंदे जो हैं पार्लियामेंट के वो वोट डालते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नहीं। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आंसर कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। हाँ, हावर द
हाँ, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज़ वाइस प्रेसिडेंट. हाउएवर द डिप्टी चेयरमैन इज़ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा एंड इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देम. ठीक है ना. उसके बाद देखते हैं इलेक्टोरल कॉलेज इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज. इलेक्टेड MLA और इलेक्टेड MP. ठीक है. द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हाउएवर has as part of its electoral college all the members of the parliament whether elected or nominated. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC. ठीक है ना. NDC में कौन कौन होता है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट आंसर बताना है. तो 4 स्टेटमेंट है, उनमें से 3 सही हैं. ठीक है ना. हाँ, और वो हैं कि नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में. उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट होते हैं. उसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होते हैं. ठीक है. हाँ, एक इनकरेक्ट स्टेट में है कि फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होता है. नो, इट इज़ इनकरेक्ट. डिटेल देखते हैं कि द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑल द CMs, चेयरमैन ऑफ. हाँ, और उसके बाद है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज़ नॉट इट्स मेंबर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन. आंसर है कि इट इज़ प्रोवाइडेड इन द प्रीएम्बल एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है. जो इकोनॉमिक जस्टिस है ये प्रीएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनमें मेंशन है ये. ठीक है. हाँ, डिटेल देखते हैं कि द प्रीएम्बल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड्स फॉर इकोनॉमिक जस्टिस एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. The part on directive principles of state policy, on the other hand, contains several articles which provide for economic justice. For example, Article 31, Clause 1 says, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the instructions of the national life. ठीक है. The part on fundamental rights on the other hand is concerned with the individual rights against state and does not contain provisions for economic justice directly. The next question is consider the following statement and tell which of the given statement are correct. ठीक है ना. तो 2 स्टेटमेंट है करेक्ट, एक ही, और वो है कि the president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. ठीक है. Yes, ये सही है. एक incorrect statement है कि all the executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. No, they are taken in the name of president. अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 77 जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरलिंक्स द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हाँ, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77. ठीक है. आर्टिकल 77 के मुताबिक क्या होता है. हाँ, नंबर 1 ये होता है कि ऑल द एग्जेक्टिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. यस. उसके बाद क्या होता है आर्टिकल 77 में कि द आर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड इन रूल्स टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द वैलिडिटी ऑफ एन आर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ सो authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president. ठीक है. उसके बाद क्या आर्टिकल 77 में ये है कि द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है ना. तो 2 स्टेटमेंट है, दोनों सही है. नंबर 1, हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया, उसके मुताबिक. ठीक है कि देर इज़ नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यस, कोई जिक्र नहीं है उसका. उसके बाद है कि अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली. यस. ठीक है, ये भी सही है. डिटेल देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन आइदर द कॉन्फिडेंस मोशन और द नो कॉन्फिडेंस मोशन. ठीक है. हाँ,
ना ही कॉन्फिडेंस के मोशन का जिक्र है और ना ही नो कॉन्फिडेंस का, ठीक है ना। हाँ, आर्टिकल 75 डज स्पेसिफिकली डज स्पेसिफाई दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, आर्टिकल 75, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा MPs मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, ठीक है। द नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी ब्रॉट ओनली इन द लोकसभा, यस। उसके बाद है कि आर्टिकल 118, आर्टिकल 118 जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक इट्स ओन रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। हाँ, रूल नंबर 198, रूल नंबर जो लोकसभा का रूल नंबर 198 है, ठीक है ना। रूल नंबर 198 ऑफ द लोकसभा स्पेसिफाइज द प्रोसीजर फॉर अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। एनी मेंबर may give a written notice, ठीक है। एनी मेंबर may give a written notice. The speaker shall read the motion of no confidence in the house and ask all those persons to rise who favor that the motion be taken up, ठीक है। If there are 50 MPs in favor, अगर उसके के नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में 50 MPs हैं, द स्पीकर अलॉट्स अ डेट फॉर डिस्कसिंग द मोशन, ठीक है ना। A motion of no confidence need not a motion of no confidence need not set out on which it is based, ठीक है। Even when grounds are mentioned in the notice and read out in the house, they do not form part of the no confidence motion. Next question is that the power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state falls under its, आंसर है कि they fall under its ओरिजिनल jurisdiction, ठीक है। ऑप्शन में थे आपके पास एडवाइजरी jurisdiction, appellate jurisdiction, writ jurisdiction, ओरिजिनल jurisdiction। तो करेक्ट है कि ओरिजिनल jurisdiction, ठीक है ना, कि सेंटर और स्टेट के दरमियान में जो डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन हैज़ बीन डेल्ट अंडर आर्टिकल 143, ठीक है ना, विच डिस्क्राइब्स द कंसल्टेटिव रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ये आर्टिकल 143 इसको डील करता है, जिसमें प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। Then appellate jurisdiction of the Supreme Court under Article 132 Clause 1, 133 Clause 1 or 134 of the Constitution deals with appeals done in respect of any judgment, ठीक है, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। किसी भी हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, डिक्री है या फाइनल ऑर्डर, ठीक है ना, उससे डील करते हैं क्या, आर्टिकल 132 Clause 1, आर्टिकल 133 Clause 1 एंड आर्टिकल 134, ठीक है, ये उससे डील करते हैं। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन ये होगी, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद देखते हैं कि रिट जुरिस्डिक्शन जो है ना, जिसमें रिट इशू होती है, ठीक है ना। हाँ, जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, ठीक है ना। रिट जुरिस्डिक्शन, हाँ, आर्टिकल 32 इम्पोजेस ड्यूटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, ठीक है। Under Article 32, every individual has a right to move the Supreme Court if there is infringement of on his fundamental rights, ठीक है ना। Original jurisdiction is the power. Original jurisdiction is the power to hear a case for the first time, ठीक है। The Supreme Court has exclusive original jurisdiction on all cases between the center and the states of India according to Article 3, ठीक है। कि हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन, आंसर है कि इट इज़ वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द पार्लियामेंट इज़ गिवन द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 envisaged a Supreme Court with the Chief Justice and 7 other judges leaving it to the Parliament to increase this number, ठीक है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जजेस थे, और ये पार्लियामेंट को पे छोड़ दिया था कि वो अगर बढ़ाना चाहे नंबर, ठीक है ना। In the early years, all the judges of the Supreme Court sat together to hear the cases presented before them. As the work of the court increased and the arrears of cases began to accumulate,
मतलब क्या इकट्ठा होना शुरू हुए। पार्लियामेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस फ्राम 8 इन 1950 टू 11 इन 1956, देन 14 कर दिया 1960 में, 18 कर दिया 1978 में, 26 कर दिया 1986 में और 31 कर दिया 2008 में, ठीक है ना। हाँ, एज द नंबर ऑफ जजेस हैज़ इंक्रीज दे सिट इन स्मॉलर बेंचेस ऑफ 2 and 3 कमिंग टुगेदर इन लार्ज बेंचेस ऑफ 5 and more only when required to do so or to settle a difference of opinion or controversy. Next question is कि which one of the following is the largest committee of the parliament, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके पास कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ठीक है, देन आ गया कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, कमेटी ऑन पेटिशंस। कौन सी जो है वो कमेटी लार्जेस्ट कमेटी है? तो आंसर है कि द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स इज़ द लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है ना। डिटेल देखते हैं कि कमेटी ऑन एस्टिमेट्स कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द लोक सभा एवरी ईयर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स, ठीक है। द कमेटी, हाँ, कि जो कमेटी ऑन एस्टिमेट है लार्जेस्ट पार्टी है क्योंकि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोक सभा इलेक्ट करती है, ठीक है, 30 मेंबर्स को हर साल फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, ठीक है। Then the committee on public undertakings consist of 15 members elected by Lok Sabha and 7 members of the राज्य सभा, ठीक है। जो कमेटी है पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर उसमें जो हैं 15 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा इलेक्ट करती है और 7 राज्यसभा, टोटल हो गए 22, ठीक है। उसके हाँ, अ मिनिस्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दिस कमेटी, द टर्म ऑफ द कमेटी इज़ 1 year, ठीक है। देन the committee on public accounts consists of 15 members elected by Lok Sabha and 7 members by Rajya Sabha, टोटल हो गए 22, ठीक है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स पर भी। A minister is not eligible for election to this committee, the term of the committee is 1 year. Then the committee on petitions लोक सभा, ठीक है ना, कमेटी ऑन petitions लोक सभा कंसिस्ट ऑफ 15 members nominated by the speaker, ठीक है। ये सिर्फ लोक सभा की ही होती है, इसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इस कमेटी ऑन पेटिशंस, ठीक है, लोकसभा की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अ मिनिस्टर इज़ नॉट नॉमिनेटेड टू दिस कमेटी, ठीक है। हाँ, द फंक्शन ऑफ द कमेटी इज़ टू कंसिडर एंड रिपोर्ट ऑन पेटिशंस प्रेजेंटेड टू द हाउस। Next question is with reference to union budget which of the following are covered under non-plan expenditure, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास डिफेंस एक्सपेंडिचर, देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, सैलरीज एंड पेंशन, सब्सिडीज, ठीक है। कि विद रेफरेंस टू यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव मीन्स डिफेंस एक्सपेंडिचर, देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, सैलरीज एंड पेंशंस एंड सब्सिडीज, दीज आर कवर्ड अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं इसके बारे में कि प्लान एक्सपेंडिचर्स इंक्लूड द मनी गिवन टू द यूनियंस ऑन 5-year प्लान्स एंड मनी गिवन टू स्टेट्स 5-year प्लान्स, ठीक है। एंड एनी एक्सपेंडिचर अदर देन दैट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर कम्स अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। तो आंसर है कि 10th शेड्यूल, ठीक है, कि 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पॉपुलरली रेफर टू एज द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंसर्टेड बाय 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985। जो 52 तरमीम हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में, उसमें ये 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड करा गया, ठीक है ना। 10th schedule of the Constitution of India provides that a member of the Lok Sabha, the Rajya Sabha, or a legislative assembly of or legislative council is disqualified for being a member of the House if he voluntarily gives up the membership of the political party that gave him the ticket, means the original political party, to contest the election, ठीक है। हाँ, और ऑप्शन में कुछ मतलब जो ऑप्शन थे उसमें और कुछ का भी जिक्र था, जैसे 2nd शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 5th शेड्यूल, ठीक है। ये थोड़ा देख लेते हैं कि 2nd शेड्यूल डील्स विद प्रोविजन रिगार्डिंग रिम्यूनरेशन एंड अलाउंसेस ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। देन 5th शेड्यूल डील्स विद प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल शेड्यूल एरियाज एंड ट्राइब्स, ठीक है। एंड वाइल 8th
8 schedule deals with the language in the constitution, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड इन, आंसर है कि इट इज़ इंक्लूडेड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज इंक्लूडेड अंडर द आर्टिकल 51 ऑफ द DPSP कंटेन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 के मुताबिक द स्टेट शैल इंडिवर टू do number 1 to promote international peace and security, then to maintain just and honorable relations between nations, ठीक है, then to foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized people with one another, and number 4 is कि to encourage settlement and to encourage settlement of international disputes by arbitration, ठीक है। ये आर्टिकल 51 में ये मेंशन चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन है जिसमें 2 सही हैं, ठीक है ना। हाँ, और वो हैं कि नंबर 1 आ गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और उसके बाद आ गया द पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये जो है प्लानिंग इन इंडिया उससे जुड़ी हुई हैं। बाकी जो ऑप्शन है जैसे फाइनेंस कमीशन, दैन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट, इनका कुछ रोल नहीं है इसमें, अब तक ये नहीं है उतने प्लानिंग में, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि 5-year प्लान इन इंडिया पासिस थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट, काउंसिल्स, बॉडीज एट्सेट्रा। द ड्राफ्ट प्लान वाज यूज्ड टू बी प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन, देन इट वाज यूज्ड टू बी पास्ड टू यूनियन कैबिनेट फॉर अप्रूवल, ठीक है। वंस इट इज़ पास्ड बाय द कैबिनेट इट इज़ पास्ड टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC। हाँ, एट लास्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ NDC इट इज़ सेंड टू द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल, ठीक है। कैबिनेट के बाद NDC के पास आता है और NDC के बाद पार्लियामेंट में जाता है। मतलब प्लानिंग कमीशन जो कि अब रिप्लेस हो चुका है नीति आयोग से, ठीक है ना। उस प्लानिंग कमीशन में पहले जाएगा, फिर उसके बाद यूनियन कैबिनेट में, फिर यूनियन कैबिनेट से NDC में और NDC के बाद पार्लियामेंट में। 5-year प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें बताना है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का फंक्शन इनमें से कौन कौन सा है। 3 स्टेटमेंट हैं जिनमें 2 सही हैं, ठीक है ना, और 1 इनकरेक्ट है, ठीक है ना। और वो जो सही है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का फंक्शन में आ गया नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। कैबिनेट मीटिंग्स का जो एजेंडा होता है वो भी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट करता है। उसके बाद प्रिपेयर, उसके बाद ये है कि सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमेटीज़, ठीक है। हाँ, कैबिनेट कमेटीज़ को सेक्रेटेरियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है कौन, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है ना। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्री, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल देखते हैं आगे। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट प्रिपेयर्स द एजेंडा फॉर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टू प्रोवाइड with all types of secretariat assistance to the other various cabinet committees, ठीक है। It is also the duty of the cabinet secretariat to provide with all types of secretariat assistance to other various other cabinet committees, ठीक है ना। The secretariat cabinet secretariat, ठीक है ना, it assists in decision making in the government by ensuring interministerial coordination, ठीक है, इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, हाँ, ironing out the differences amongst ministries and departments and evolving consensus through instrumentality of standing ad hoc committees of the secretaries, ठीक है। ये सब यूनियन सेक्रेटेरिएट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम है, ठीक है। देन थ्रू दिस मैकेनिज्म न्यू पॉलिसी इनिशिएटिव्स आर आल्सो प्रोमोटेड, ठीक है। द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड मिनिस्टर are kept informed of the major activities of all ministries and departments by means of monthly summary of their activities, ठीक है। management of major crisis situations in the country and coordinating activities of various ministry is in such a situation is also one of the function of the cabinet secretariat, ठीक है। however it is not the function of the cabinet secretariat to allocate financial resources to the ministries।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, हाँ एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज़ वन विच इज़ व्हाट, ठीक है ना। आंसर है कि अ कैबिनेट गवर्नमेंट इज़ वन which places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty, ठीक है ना। कि constitutional government, ठीक है ना, हाँ, a constitutional government is one which places effective restrictions on the authority of the state in the interest of individual liberty, ठीक है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल में देखते हैं थोड़ा इसका आंसर कि constitutional government has provisions like fundamental rights to protect individual liberty and protect individual from any arbitrary state actions, because the constitution grants power in the name of the people and the state draws its power from the consent of the governed, ठीक है ना। and state draws its power from the consent of the governed, ठीक है। जिनको रूल करा जाता है 19 से कंसेंट ली जाती है, मतलब वोटिंग से, ठीक है ना। The Constitution says that states will use its power in the interest of the people. Constitution permits reasonable restriction to be imposed on individuals' liberties in the interest of society and not on the interest of state authority. Next question is which of the following are the discretionary powers given to the governor of a state, ठीक है। कुछ ऑप्शन से करेक्ट वाला बताना है। करेक्ट आंसर है दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है ना। नंबर 1 आ गया कि सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग अ प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, यस, ये भी सही है। उसके बाद है कि प्रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। लेकिन दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हैं कि अपॉइंटमेंट, हाँ, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, ये नहीं है रूल, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसका कि ड्यूरिंग द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस गवर्नर एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ आल्सो वेस्टेड द गवर्नर विद सर्टन डिस्क्रिशनरी पावर्स which he can use without the aid and advice of the council of ministers, or in other words in the discharge of these functions the governor concerned is not bound to seek or accept the advice of the council of ministers, ठीक है। Governor uses his discretion in the appointment of the chief minister where after the general assembly elections no single party or group commands absolute majority, ठीक है। He may call such person to form the government to whom he thinks fit to form the government, ठीक है। Similarly, if after the death or resignation of the chief minister on any political ground or after the defeat of the chief minister in the house any party or group is not in majority, the governor may appoint such person as the chief minister to whom he thinks fit, ठीक है। And then a minister hold office during the pleasure of the governor, ठीक है। When the ministry loses support of the house, the governor will dismiss the ministry, ठीक है ना। But he cannot dismiss it until it loses majority support, ठीक है ना। The governor advises the president to proclaim emergency when he is satisfied that the government cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution under article 356 में लगा देता है ये, मतलब के emergency के लिए, ठीक है ना। The governor summons, prorogues and dissolves the legislative assemblies according to articles 174, ठीक है। 174 आर्टिकल के तहत गवर्नर जो है वो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को प्रोरोग यूज़ भी करता है, डिसॉल्व भी करता है, आर्टिकल 174 के मुताबिक। देन व्हेन द मिनिस्ट्री लॉसेस द मेजॉरिटी एंड द गवर्नर इज सेटिस्फाइड ही मे डिसॉल्व द हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना।
दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। पहली में बोलता है कि द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर, ये भी इनकरेक्ट। उसके बाद है कि प्राइम मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड, ये भी सही नहीं है, ठीक है। डिटेल देखते हैं आंसर करेक्ट के। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 74 इन पार्ट 5th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जेक्टिव विच कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक पार्ट 5th में, ठीक है। Then as per Article 53 Clause 1, the executive power of the Union shall be vested in the Parliament, shall be vested in the President, and shall be exercised by him under either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution. The Cabinet Secretary is the ex officio chairman of the Civil Services Board, ठीक है। कौन? कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड बाय, आंसर है कि अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि there are two occasions on which the joint sitting of the both houses of the parliament is convened. Number 1 के special address by the president at the commencement of the first session after each general election to the house of the people and to commencement of the first session of each year, ठीक है। the president shall address both the houses of the parliament assembled together, ठीक है। नंबर 2 जो है जॉइंट सिटिंग होती है वो इसलिए होती है फॉर रिजॉल्विंग एनी डेडलॉक ओवर द पासेज ऑफ अ बिल एज़ पर आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 के मुताबिक जो है किसी कोई डेडलॉक ख़त्म करना, उसलिए जॉइंट सिटिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि देयर आर 3 सिचुएशंस विच कैन लीड टू अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, या तो इफ़ द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस। नंबर 2 इफ़ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड as to the amendments to be made in the bill. Number 3 के if more than 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it, ठीक है। हाँ, तब डेडलॉक बन जाता है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि इन दी अबव 3 सिचुएशंस द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ हाउसेस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग आर एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स ऑनली, ठीक है, नॉट टू मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, ठीक है। द स्पीकर ऑफ द लोक सभा प्रिजाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस एंड द डिप्टी स्पीकर इन हिज एब्सेंस, ठीक है। The bill in such a sitting is passed by a simple majority, that is more than 50% of the members of the parliament present and voting, excluding the number of members abstaining, जो absent है उनको छोड़कर। Next question is consider the following statements regarding the directive principles of state policy and tell which of the given are correct, ठीक है ना। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं। पहली में है कि द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। द प्रिंसिपल स्पेल आउट SPELL these directive principles spell out the socio-economic democracy in the country. Yes, उसके बाद है the provisions contained in these principles are not enforceable by any court. Yes, ये भी सही है, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि the directive principles of state policy spell out the socio-economic democracy in the country in the following articles of the constitution में आई जो socio-economic डेमोक्रेसी, ठीक है, सोशो इकॉनमिक डेमोक्रेसी इन आर्टिकल्स जो DPSP में फॉल करते हैं। नंबर 1 आर्टिकल 37, देन आर्टिकल 37, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 क्लास बी, आर्टिकल 39 क्लास सी, आर्टिकल 39 क्लास डी, आर्टिकल 39 क्लास ई, देन आर्टिकल 41, देन आर्टिकल 43, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 37 ये कैसे सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी से डील करता है कि हाँ आर्टिकल 37
The provisions contained in the directive principles of state policy shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. ये आर्टिकल 37 में है, ठीक है। हाँ, उसके बाद है कि आर्टिकल 38, ठीक है। ये क्या कहता है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय securing a social order permeated by social, economic and political justice and democracy, and to minimize the inequalities in income and to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations, ठीक है। Then आर्टिकल 39 क्लास बी, ठीक है। आर्टिकल 39 क्लास बी क्या कहता है कि द स्टेट शैल सिक्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, ठीक है। हाँ, यस। उसके बाद आर्टिकल 39 क्लास सी क्या कहता है कि द स्टेट शैल प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ना ही दौलत इकट्ठी करी जाएगी और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इसको मतलब कंसंट्रेट करा जाएगा एक ही जगह पे, इसको भी स्टेट जो है रोकेगी। आर्टिकल 39 क्लास सी में ये भी सोशो इकॉनमिक पर्सपेक्टिव आ गया। देन आर्टिकल 39 क्लास डी, इसमें है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन टू बी सिक्योर्ड, ये आर्टिकल 39 क्लास डी में है, ये भी सोशो इकॉनमिक पर्सपेक्टिव है। देन आर्टिकल 39 क्लास ई, इसमें है प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़, हाँ, इज़ टू बी रियलाइज, ठीक है। ये आर्टिकल 39 क्लास ई में है, ये भी सोशो इकॉनमिक पर्सपेक्टिव है। उसके बाद आर्टिकल 41 जो है, ठीक है ना, इसमें है कि टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट फॉर इट्स सिटीजन्स, ठीक है। कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हो, ओल्ड एज हो, बीमार हो या डिसेबल हो बंदा, ठीक है ना, सिटीज़न, तो तब जो है राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस को सिक्योर करना है, ठीक है। ये आर्टिकल 41 में, ये भी सोशो इकॉनमिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना, सोशो इकॉनमिक डेमोक्रेसी। देन आर्टिकल 43 डीपीएसपी का आर्टिकल 43 ये कहता है कि टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स एंड टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि देर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ वट इज़, 4 ऑप्शन है तो हमें करेक्ट बताना है। तो वो है कि बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा, तो इसलिए जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, ठीक है। हाँ, तो डिटेल में देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड इन स्टेट्स, ठीक है। आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम एट द सेंटर, ठीक है। एंड आर्टिकल 163 एंड 164 इन द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 74 और 75 जो हैं ये जो सेंटर में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का उससे डील करते हैं, और आर्टिकल 163 और 164 जो हैं वो स्टेट में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट में उससे डील करते हैं, ठीक है। 74, 75 सेंटर की पार्लियामेंट्री सिस्टम और आर्टिकल 163 एंड 164 स्टेट की पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। The parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts, ठीक है। हाँ, तो this parliamentary system, parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government, ठीक है ना। हाँ, it is prevalent in Britain, Japan, Canada, ठीक है, इंडिया एट्सेट्रा। कौन ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। In this system, the real executive is accountable to the parliament and stays in office so long as it enjoys the letters of confidence, ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगर कोई पूछे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है ना, तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो सिस्टम होता है जिसमें एग्जेक्टिव जो है वो रिस्पांसिबल है लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। लेजिस्लेचर में रिस्पांसिबल है, आपने जो भी पॉलिसीज और एक्ट्स हैं
ठीक है, उस के लिए जो है लेजिस्लेचर में रिस्पॉन्सिबल बनता है, ठीक है ना, एग्जेक्टिव मतलब इज रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को जो है कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ये ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इंडिया में है, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो एग्जेक्टिव है वो अकाउंटेबल होगा पार्लियामेंट में और ऑफिस में तब तक रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट का कॉन्फिडेंस नहीं जाया करता, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसकी क्या फीचर्स हैं। नंबर 1 ये है कि नॉमिनल एंड रियल एग्जेक्टिव, ठीक है। नंबर 2 मेजॉरिटी पार्टी रूल। नंबर 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 4 पॉलिटिकल होमोजेनिटी। नंबर 5 लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कि अगर को पूछे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के क्या फीचर हैं, नंबर 1 है नॉमिनल एंड रियल एग्जेक्टिव, ठीक है। हाँ, उसके बाद आ गया मेजॉरिटी पार्टी रूल, ठीक है। फिर आ गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3। नंबर 4 आ गया पॉलिटिकल होमोजेनिटी। नंबर 5 आ गया लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Next question is the provisions of the 5th schedule and 6th schedule in the Constitution of India are made in order to, आंसर है कि in order to protect the interest of the scheduled tribes, ठीक है। एस्टेज डिटेल देखते हैं। 5th schedule of the Constitution deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribes in any state except the 4 states of Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram, ठीक है ना। हाँ, then the 6th schedule of the Constitution deals with the administration of tribal areas in the 4 northeastern state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, ठीक है ना। Next question is with reference to the union government consider the following statements and tell which of the given statement are correct, ठीक है ना। कि यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, और वो है नंबर 1 कि नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यस, ये भी सही है। उसके बाद है कि ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, ठीक है। ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यस, ये दोनों सही हैं। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है था डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब डिटेल में देखते हैं इसका आंसर क्या है। द बजट डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। हाँ, कि जो बजट डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ठीक है ना, उसकी जो बजट डिवीज़न है, हाँ, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसकी जो बजट डिवीज़न है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट दैट इज़ प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। हाँ, एज़ पर आर्टिकल 114 आर्टिकल 114 के मुताबिक नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ दैट इज़ विदाउट द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कि आर्टिकल 114 आर्टिकल 114 के मुताबिक ये है कि नो मनी शैल बी विदड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट appropriation made by law or say without it cannot be withdrawn from consolidated fund of India without the authorization from Parliament of India. उसके बाद देखते हैं एज़ पर आर्टिकल 266 क्लास 2 आर्टिकल 266 क्लास 2 के मुताबिक ऑल अदर पब्लिक मनी रिसीव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट शैल बी क्रेडिटेड टू द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ द स्टेट एज द केस में भी, ठीक है। सो ऑल द डिस्बर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड द ऑथराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो 3 स्टेटमेंट हैं जिनमें से सिर्फ 2 ही करेक्ट हैं, ठीक है, एक इनकरेक्ट है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है कि द राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल। यस,
उसके बाद है कि राज्यसभा के नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, यस ये भी सही है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि राज्यसभा के नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट है। डिटेल देखते हैं आगे आंसर इसकी कि द पावर्स एंड स्टेटस ऑफ द राज्यसभा आर अनइक्वल टू दैट ऑफ द लोकसभा इन द फॉलोइंग मैटर। नंबर 1 के money bill can be introduced only in the Lok Sabha and not in Rajya Sabha. That is, after being passed by the Lok Sabha, the money bill is passes on to the Rajya Sabha, which has following action. Number 1, to pass the bill in the original form. Number 2, take no action for 14 days. ठीक है, राज्य सभा cannot amend or reject a bill. It should return the bill to the Lok Sabha with or without any recommendation within 14 days. ठीक है, the Lok Sabha has sole authority to accept or reject all or any of the recommendations of the Rajya Sabha. ठीक है, in both the cases the money bill is deemed to have been passed by the two houses. ठीक है, ये नंबर 1 हो गया कि जो पावर्स एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा इज़ अनइक्वल टू दैट ऑफ लोकसभा। एक तो ये हमने पूरा पढ़ा, ठीक है ना, मनी बिल के रिलेटेड। उसके बाद है नंबर दूसरी स्टेटमेंट कि द फाइनल पावर टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर बिल इज़ अ मनी बिल आर नॉट, इट इज़ वेस्टेड इन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, देन राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स बजट बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विच इज़ द एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा। ठीक है, देन राज्यसभा कैन नॉट रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक है ना, एक भी सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। यस मतलब हाँ, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 क्लास 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, कि आर्टिकल 171 क्लास 1 आर्टिकल 177 क्लास 1 के मुताबिक के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, हाँ, कि ये मतलब हुआ कि जो भी एमएलए हैं उनका 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एमएलसी। ठीक है, सिंपल वर्ड में ये द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट शैल इन नो केस बी लेस दैन 40 से कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन 1-2 में है। ठीक है, जैसे सिक्किम वगैरह। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 171 क्लास 3 सब क्लास ई, हाँ ये ऊपर हमने पढ़ा कि आर्टिकल 171 क्लास 1 के मुताबिक। ठीक है, आप पढ़ेंगे आर्टिकल 171 क्लास 3 सब क्लास ई के मुताबिक द रिमाइंडर मीन्स द 1/6 मेंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ legislative council in a state the 1/6 members of the total number of members of the legislative council of a state nominated by the governor from amongst persons who have special knowledge or practical experience of literature, science, art, cooperation, movement and social service. The chairman of the legislative council is elected by the council itself from amongst its members. Next question is to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India is a provision made in the आंसर है कि it is made in the fundamental duties। ठीक है ना, हाँ डिटेल देखते हैं कि on the recommendation of सरदार स्वरण सिंह कमेटी fundamental duties are included in the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 which included 10 fundamental duties। ठीक है ना, हाँ कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी गई थी। कब? जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। ठीक है, हाँ, जिसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली थी। ठीक है ना, देन विद द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 1 मोर ड्यूटी वाज एडेड। ठीक है, पहले तो 10 थे। ठीक है, 1976 में। देन
2002 में एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसमें एक और जो है 11वें नंबर पे एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डेल्ट बाय आर्टिकल 51 पार्ट ए, आर्टिकल 51 क्लास ए, पार्ट 4 क्लास ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर एवरी सिटीजन, ठीक है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ these fundamental duties. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज़ टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर है इसका कि नंबर 1 पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, नंबर 2 है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। ये पंचायती राज सिस्टम का एक ऑब्जेक्ट है, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट के पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी हैं कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी ये भी इनकरेक्ट है और एक है फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। इट इज़ क्रिएटेड इन ऑल द स्टेट्स इन इंडिया बाय द एक्ट्स ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। इट इज़ इंटरेस्टेड विद द रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। It was constitutionalized through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, ठीक है। This act has added a new part 9th and new 11th schedule to the constitution, ठीक है। It is entitled as the Panchayat and consists of provisions from Article 243 to Article 243 Clause O, ठीक है ना। The fundamental objects of the Panchayat are नंबर 1 क्या फंडामेंटल ऑब्जेक्ट के पीपल पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। इट इज़ द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सनस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ अ विलेज, ठीक है। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC एंड STs, ठीक है, वेमेन एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद दूसरा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, मीन्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपॉन पंचायत्स टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। ग्रांटिंग फाइनेंशियल पावर्स टू लेवी एंड कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इंश्राइंड इन इट्स। आंसर है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर स्टेट के बारे में, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इन्यूमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। इट हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, ठीक है। On the basis of their content and direction, it can be classified into 3 broad categories. Directive principles कौन से आगे? Socialist, Gandhian and liberal intellectual principle, ठीक है। On the basis of their content and direction, directive principles can be classified into 3 broad categories. Number 1, socialist principle, then Gandhian principles, and then liberal intellectual principles, ठीक है। अब देखते हैं डिटेल में कि द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। हाँ, द सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट, ठीक है। यस, हाँ, प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पाथ टुवर्ड्स वेलफेयर स्टेट। कौन से? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। दी सोशलिस्ट प्रिंसिपल दे डायरेक्ट द स्टेट इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1, थ्रू आर्टिकल 38, 39D, 39F, 39A, 42 इनके थ्रू, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि दी सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल डायरेक्ट द स्टेट इन द फॉलोइंग। नंबर 1, आर्टिकल 38 ये कहता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर, कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, दैट इज सोशल, political and economic, and to minimize inequalities in income status, facilities and opportunities, ठीक है, आर्टिकल 38 में। उसके बाद आर्टिकल 39 क्लास डी में है, ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल, आर्टिकल 39 क्लास डी,
कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 क्लास डी में। देन आर्टिकल 39 क्लास एफ में है कि अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 क्लास एफ में अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 39 क्लास डी में। उसके बाद आ गया आर्टिकल 39 क्लास ए, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्लास ए जो है ये करता है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39 क्लास ए। फिर आर्टिकल 42 कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। हाँ, तो ऊपर जो मैंने पढ़ा था आर्टिकल 39 क्लास ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये सारे जो हैं ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को कवर करते हैं। आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 डी, आर्टिकल 39 एफ, आर्टिकल 39 ए एंड देन आर्टिकल 42, ठीक है। ये 5 आर्टिकल्स जो हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। And then 7th schedule deals with the division of powers between the union and the state in the terms of union list, state list and concurrent list, ठीक है। क्योंकि 7th schedule का क्योंकि और भी इनकरेक्ट ऑप्शन थे ना, जैसे प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स 7th schedule का क्वेश्चन में जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं कि 7th schedule deals with the division of powers between the union and the state in terms of union list, state list and concurrent list, ठीक है, 7th schedule में। देन फंडामेंटल राइट्स का अगर देखें, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, दैट इज नंबर 1, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। नंबर 1 आ गया राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 आ गया राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 4 आ गया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नंबर 5 आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और नंबर 6 आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आया था कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट इज पास्ड बाय, आंसर है कि द राज्यसभा, इफ इट इज रेजोल्यूशन इज पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय राज्यसभा बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। कि आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 जो है, ठीक है ना, आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट इन द नेशनल इंटरेस्ट रिक्वायर्स द काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा टू पास अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, आर्टिकल 249 में 249 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो 2 स्टेटमेंट हैं, उनमें करेक्ट सिर्फ एक है और वो है कि आप पंचायत रिकन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ऑनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है, यस ये सही है, ठीक है। आप पंचायत रिकन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ऑनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें यह है कि द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज़ 25 ईयर्स, नो इट इज़ 21। डिटेल देखते हैं कि अ कैंडिडेट फॉर द सीट ऑफ अ मेंबर और सरपंच और ग्राम पंचायत मस्ट बी रजिस्टर्ड अ वोटर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ दैट ग्राम पंचायत। अ कैंडिडेट कैन नॉट बी डिस्क्वालिफाइड इफ़ ही इज़ लेस दैन 25 ईयर्स बट मोर देन 21 ईयर्स, ठीक है, 21 साल का होना चाहिए कम से कम। Every panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue for 5 years from the date of appointment की डेट से, ठीक है ना। आप पंचायत constituted upon dissolution of a panchayat constituted upon dissolution of a panchayat before expiration of its duration shall continue only for the remainder of the period for which the dissolved panchayat would have continued under clause 1 had it not been dissolved. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो, ठीक है ना। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं लेकिन करेक्ट उनमें एक ही और वो है कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। कि अगर कोई बिल जो है राज्यसभा में पड़ा है पेंडिंग पे,
तो अभी तक वो मतलब कि लोकसभा ने पास नहीं करा बल्कि राज्यसभा में पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाएगी तो ये बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है, ये रहेगा। ये सही स्टेटमेंट है। उसके बाद अगर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन में, वो ये है कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स, सिमिलरली ड्यू टू प्रोरोगेशन बिल्स डू नॉट लैप्स, ठीक है। प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स द सेशन ऑफ द हाउस ऑनली, ठीक है। प्रोरोगेशन से सिर्फ किसी हाउस का सेशन जो चल रहा होता है वो टर्मिनेट होता है प्रोरोगेशन से, ठीक है, बिल लैप्स नहीं होता। हाँ, in case the Lok Sabha is dissolved, maybe due to completion of tenure or lack of majority, certain bill lapse, that is they stop existing, the new Lok Sabha will have to start the process afresh, ठीक है। हाँ, द केसेस व्हेन बिल लैप्स आर, कि वो कौन से केसेस हैं जब बिल लैप्स हो जाते हैं। नंबर वन के द बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सिस वेदर ओरिजिनेटिंग इन लोकसभा आर सबमिटेड बाय राज्यसभा, ठीक है। हाँ, तो लोकसभा में वो लैप्स हो जाएगा। उसके बाद है कि अ बिल पास बाय लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सिस, ठीक है। अगर लोकसभा ने बिल पास कर दिया है लेकिन राज्यसभा में पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी लैप्स हो जाएगा। अगर लोकसभा ने अभी पास नहीं करा राज्यसभा में, वो लैप्स नहीं होगा, ठीक है। देन अ बिल नॉट पास्ड बाय बोथ हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट एंड इफ प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड फॉर जॉइंट सेशन बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा डज नॉट लैप्स, ठीक है। कि कोई ऐसा बिल जो कि दोनों हाउसेस ने अभी पास नहीं करा डिसएग्रीमेंट की वजह से, और अगर प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया है जॉइंट सेशन के लिए, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी उससे पहले एक नोटिफिकेशन निकाले कि जॉइंट सेशन लूँगा, तो ऐसा बिल जो है वो लैप्स नहीं होगा, डज नॉट लैप्स। देन नंबर 4, अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट वेटिंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स, ठीक है। अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत है, ये भी लैप्स नहीं होगा। नंबर 5 है कि अ बिल रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन डज नॉट लैप्स, ठीक है। हाँ, अगर यस, कि अगर बिल जो है वो प्रेसिडेंट ने रिटर्न करा है रिकंसिडरेशन के लिए, ये भी लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, ये भी इनकरेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट है कि द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज़ अ फिक्स्ड टेन्योर, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। डिटेल देखते हैं आप। द चीफ सेक्रेटरी इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है। कौन? चीफ सेक्रेटरी। हाँ, ही इज़ इन मैनी वेज द काउंटर पार्ट एट द स्टेट लेवल, ठीक है, ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है ना। Chief Secretary in many ways is the counterpart at the state level of the cabinet secretary. As the chief coordinator of the state secretariat and other administrative departments, and as head of the civil service, this chief secretary is the pivot for the state governance system. The incumbent to the post of chief secretary is chosen by the chief minister of the state, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर चूज़ करता है, ठीक है। द इशू ऑफ एन अप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ स्क्रूटनी ऑफ टीन्योर हैज़ बीन अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पर्सनल पॉलिसीज़, ठीक है। पर्सनल PERSONAL पर्सनल पॉलिसीज़। देयर इज़ नो फिक्स टीन्योर फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट the Administrative Reforms Commission in its report on state administration in 1969 had recommended that the chief secretary should have a minimum tenure of 3 to 4 years, ठीक है। This suggestion has however not been accepted and has not been considered feasible, ठीक है। ये जो 1969 में जो ये बना था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय NYALAYA, ठीक है ना। ग्राम न्यायालय एक्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट एक ही स्टेटमेंट है कि दिस ग्राम न्यायालय एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकॉन्सिलिएटर्स, यस, ये करेक्ट है।
एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि एज पर दिस ग्राम न्यायालय एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हेयर ओनली सिविल केसेस एंड नॉट क्रिमिनल केसेस। ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं इसका आंसर कि एज पर द ग्राम न्यायालय एक्ट ग्राम न्यायालय कैन हेयर बोथ क्रिमिनल एंड सिविल केसेस एंड अपील्स इन सिविल केसेस विल हैव टू बी डिस्पोज ऑफ इन 6 मंथ। 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करना होगा, ठीक है। This Gram Nyalaya Act also makes the judicial process participatory and decentralized because it allows appointment of local social activists and lawyers as mediators and reconciliators, ठीक है। कौन? ग्राम न्यायालय एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2017 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द इंडियन सिटीजन, ठीक है। हाँ, तो 2 स्टेटमेंट है, दोनों इनकरेक्ट हैं। पहले में बोलता है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू इन्फोर्स दिस ड्यूटीज़, नो, इनकरेक्ट, ठीक है। दूसरा बोलते हैं दे आर को रिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़, इट इज़ आल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। डिटेल में आंसर देखते हैं कि पार्ट 4 A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट कंटेन दिस ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय 42nd and 86 Constitutional Amendment Acts, ठीक है। एज ऑफ नाउ देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। Citizens are morally obliged by the Constitution to perform these duties. However, like the directive principles, these are non-justiciable, means without any legal sanction in the case of their violation or non-compliance, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। हाँ, तो ऑप्शन है आपके पास हाँ, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा जो है वो विच इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर है कि इकोनॉमिक लिबर्टी, ठीक है। इकोनॉमिक लिबर्टी इज़ नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी जो लिबर्टी ऑफ थाट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ जो हैं, ये दीज आर एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। हाँ, डिटेल में देखते हैं। एज आवर प्रीएम्बल स्टेट्स, क्या कहता है हमारा प्रीएम्बल कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression and belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constitution, in our Constituent Assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution, ठीक है। Preamble clearly portrays the vision of the Constitution makers as in what kind of rights and society they envisage for India. Next question is कि democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity what? Answer है कि it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women, ठीक है। Yes, कि democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि a democracy is superior because it allows a right to every adult citizen without any educational and wealth criterion, ठीक है। Democracy is a system of government in which the citizens exercise power directly or elect representatives
फ्रॉम अमंग themselves टू फॉर्म अ गवर्निंग बॉडी, ठीक है ना। सच अ पार्लियामेंट, हाँ सच अ पार्लियामेंट, हाँ सच एज पार्लियामेंट, ठीक है ना, कि दिस कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सिटीजन्स एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली एंड elect representative फ्रॉम among themselves to form a governing body such as the parliament. हाँ, अदर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर नंबर 1 के पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है, जो पब्लिक की सोवरेनिटी रहेगी डेमोक्रेसी में। देन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वालिटी, ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। एंड देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है ना। ये कुछ डेमोक्रेसी के फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट, आंसर है कि द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है। डिटेल देखते हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड थ्रू लेजिस्लेचर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड टू एंड आंसरेबल टू द पीपल, ठीक है। हाँ, executive branch is directly responsible to the legislature. A parliamentary system is a system of democratic governance of a state where the executive branch derives its democratic legitimacy from its ability to command the confidence of the legislative branch, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है ना। करेक्ट आंसर है कि राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़, ठीक है। राइट्स आर को रिलेटिव विद ड्यूटीज़। डिटेल में देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, हैज़ एनविसेज्ड अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स सिविक लाइफ इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ठीक है ना। सर्टन राइट्स हैव बीन ग्रांटेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सिंस ह्यूमन कंडक्ट कैन नॉट बी कन्फाइंड टू द realm of fundamental rights, the constitution has envisaged certain duties which are correlated to the rights and these duties have been described as fundamental duties, ठीक है। next question is the mind of the makers of the constitution of India is reflected in which of the following, answer है कि it is reflected in preamble, ठीक है। कि the preamble to the constitution serve as a key to open the minds of the framers and shows the general purpose for which they made the several provisions in the constitution, ठीक है। The preamble to the constitution embodies the fundamental values and the philosophy on which the constitution is based and the aims and objectives which the founding fathers of the constitution enjoined the polity to strive to achieve, ठीक है ना। The importance and utility of the preamble has been pointed out in the several decisions of the Supreme Court of India. Next question is the Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through what? Answer है कि through number 1 adjournment motion, then question or then supplementary question, ठीक है ना। हाँ, इन तीनों से जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कौंसिल ऑफ मिनिस्टर पर जो है कंट्रोल करती है कि एडजर्नमेंट मोशन से, क्वेश्चन आवर से और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि द पार्लियामेंट कीप्स अ डे टू डे वॉच ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। as ours is a parliamentary system of government, the executive is responsible to the parliament for all acts, ठीक है। इसमें देखते हैं कि members of the parliament have a right to ask questions and supplementary questions to the ministers. Any lapses or mishandling on the part of the government can be exposed in the parliament, ठीक है। Then adjournment motions may be moved to discuss serious administrative lapses, ठीक है। कोई लैप्स हो जाता है, सीरियस लैप्स हो गया कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन लाए जाते हैं। थ्रू एडजर्नमेंट मोशंस मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना।
तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड है। नंबर 1 के अ प्राइवेट मेंबर्स बिल इज़ अ बिल प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज़ नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इनकरेक्ट है, ठीक है। Then recently a private members bill has been passed in the Parliament of India for the first time in the history, ये भी incorrect है, ठीक है। ये 2016 में क्वेश्चन आया था, ये भी incorrect है, ठीक है। सॉरी 2017 में ये क्वेश्चन आया था लेकिन इनकरेक्ट है ये, ठीक है। डिटेल देखते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अदर देन मिनिस्टर्स आर कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। जो भी एमपीज़ होते हैं मिनिस्टर्स को छोड़कर उनको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है ना। एंड बिल्स प्रेजेंटेड बाय देम आर नोन एज प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। any MP can introduce a bill in parliament. Private member bills are bills introduced in parliament by MPs who are not ministers, ठीक है। only 14 private members bills had been passed since independence, ठीक है। आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ 14 ही प्राइवेट मेंबर्स बिल जो हैं पास हुए हैं, ठीक है, 14 ऑनली। द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस बिल 2014 पास्ड बाय द राज्यसभा is the first private members bill to get the upper house approval in the past 45 years, ठीक है। कौन सा? ये राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस बिल 2014 पास बाय राज्यसभा, ठीक है, इज़ द फर्स्ट प्राइवेट मेंबर्स बिल टू गेट द अपर हाउस अप्रूवल इन द लास्ट 45 ईयर्स, ठीक है। हाँ, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा की अप्रूवल 45 सालों में मिली है इसको, राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल, ठीक है, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ, आंसर है कि प्रिविलेजेस, ठीक है। कि वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, उसकी एक इम्प्लीमेशन क्या है कि प्रिविलेजेस एब्सेंस, ठीक है। डिटेल्स देखते हैं कि इक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ equality in society is the absence of special privileges, ठीक है। thus no person, family or class or group or persons in a society can be granted special privileges if we have to achieve equality and liberty in a society. Next question is कि which principles among the following were added to the directive principles of state policy by the 42nd amendment to the constitution, ठीक है। तो आंसर है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। डिटेल देखते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हैज़ एडिड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। न्यू डायरेक्टिव्स वर एडिड बाय न्यू आर्टिकल्स, दैट इज आर्टिकल 39A, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, which respectively provide for equal justice and free legal aid, ठीक है। हाँ, टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, आर्टिकल 39A। then participation of workers in the management of industries, article 43A, and then protection and improvement of environment and safeguarding the forest and wildlife, article 48A, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है ना। हाँ, करेक्ट कुछ स्टेटमेंट है, करेक्ट सिर्फ एक है, वो ये है कि राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है। यस, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, वो होते हैं राइट। हाँ, राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट, दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन द कंट्री एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट. They operate as limitations on the tyranny of the executive and arbitrary laws of the legislature. In short, they aim at establishing a government of laws and not of men. Next question is local self-government can be best explained as an exercise in, आंसर है कि it is an exercise in democratic decentralization. ये होता है local self-government, ठीक है ना। कि the main purpose of democratic decentralization, however, is to bring fundamental changes in the traditional outlook about the power structure of the government, ठीक है। Thus, democratic decentralization means decentralization of power, ठीक है। The source from which this power is decentralized is based on the democratic structure, and hence such decentralization is called democratic decentralization.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन इज करेक्ट। ठीक है ना, तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, दोनों गलत हैं। पहले में बोलता है कि हाँ, क्वेश्चन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंस्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन नंबर 1 लेजिस्लेटिव फंक्शन, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव फंक्शन, दोनों इनकरेक्ट है। ठीक है ना, डिटेल देखते हैं कि लेजिस्लेटिव आंसर है करेक्ट इसका क्या कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डज नॉट प्लेस एनी लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इट इज सिंपली अ गाइडलाइन। नेवरदलेस द important aspect of directive principle is the emphasis on building an egalitarian society, egalitarian society based on the concept of socio-economic justice. नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है ना, तो इसमें भी दो स्टेटमेंट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक है, पहले में बोलता है कि इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, इनकरेक्ट। उसके बाद है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर टू द अपोजिशन, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, हाँ, बिकॉज द डिटेल में आंसर क्या है, बिकॉज द विनिंग कैंडिडेट इज़ द वन हु सिक्योर्स द मेजॉरिटी वोट्स। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो गलत थी उसमें ये हाँ, उसका आंसर है कि लोकसभा ओनली बाई कंसेंसस डिसाइडेड दैट स्पीकर कम्स फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड डिप्टी स्पीकर कम्स फ्रॉम द मेन अपोजिशन पार्टी। ठीक है ना, हाँ, ओनली लोकसभा बाई कंसेंसस डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज़ अ विच राइट है, आंसर है कि इट इज़ अ लीगल राइट। वोट देना और इलेक्ट होना ये लीगल राइट है। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि आर्टिकल 326 आर्टिकल 326 जो है 326 आर्टिकल, ठीक है ना, इट स्टेट्स दैट हाँ, आर्टिकल 326 और 326 इट स्टेट्स दैट इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द मीन्स लोकसभा एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इज़ टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। ठीक है, हाँ, the elections to the house of the people and to the legislative assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage, but that is to say every person who is a citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed on that behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under the Constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, criminal or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter at any such election। ठीक है, देन इसमें देखते हैं आर्टिकल 84 क्लास बी में क्या है। तो अभी हमने वो पढ़ा था आर्टिकल 326 में, जिसमें हाँ कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्शंस होंगे वो अडल्ट सफरेज पे होंगे। ठीक है, 326 में। देन आर्टिकल 84 क्लास बी आर्टिकल 84 क्लास बी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ कैंडिडेट फॉर लोकसभा इलेक्शन शैल बी 25 ईयर्स। ठीक है, ये आर्टिकल 84 क्लास बी में। Similar provision exists for a candidate to the Legislative Assembly via Article 173 Class B of the Constitution. Read the Section 36 Class 2 Section 36 Class 2 of the RP Act 1950 Representation of People Act 1950। ठीक है, सेंटर में आर्टिकल 84 क्लास बी में बताया गया कि पार्लियामेंट में जाने के लिए 25 साल कम से कम होना चाहिए लोकसभा में जाने के लिए। ठीक है ना, और इसी तरह जो स्टेट असेंबली है उसमें जाने के लिए भी 25 साल होना चाहिए। ये आर्टिकल 173 क्लास बी में है, जो कि जिक्र करता है जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट है उसकी सेक्शन 36 क्लास 2 को। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वंस डिक्लेयर्ड राइट टू वोट एंड बी इलेक्टेड एज लीगल राइट। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज के कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें करेक्ट वाली बतानी है। और करेक्ट स्टेटमेंट है कि इलेक्शंस कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू स्प्लिट्स और मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। यस, इट इज़ करेक्ट। ठीक है ना, तो बाकी जो हैं इनकरेक्ट हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 5 मेंबर बॉडी, ये इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ नॉट हाँ, इलेक्शन कमीशन इज़ नॉट अ मल्टी मेंबर बॉडी
from the beginning. It was a single member body when it was first set up in 1950 and up to October 15, 1989 with only the chief election commissioner. ठीक है, 15 अक्टूबर 1989 तक एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर था. ठीक है. From 16 October 1989, 16 October 1989 up to January 1, 1990 it became a 3-member body. ठीक है. 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये 3 मेंबर कमेटी बनी, बॉडी बनी. ठीक है, इलेक्शन कमीशन. देन फ्रॉम जनवरी 2 1990 टू सितंबर 30 1993 इट वाज अ सिंगल मेंबर कमीशन. ठीक है. फिर जनवरी 2 1990 से सितंबर 30 1993 तक ये एक सिंगल मेंबर कमीशन बन गया, इलेक्शन कमीशन. ठीक है. एंड अगेन फ्रॉम अक्टूबर 1 1993 इट बिकेम अ 3-member कमीशन. फिर ये जो है अक्टूबर 1 1993 के बाद 3-member कमीशन बन गई. ये हो गया. एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, उसमें ये था कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शंस. ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन of India the superintendence, direction and control of entire process for conduct of elections to the parliament and legislature of every state and to the offices of the president and vice president. ठीक है, इलेक्शन कमीशन. हाँ, तो उसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट थी जिसमें था कि इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. यस, ये करेक्ट है. ठीक है ना. हाँ, स्प्लिट्स एंड मर्जर्स ऑफ स्प्लिट एंड मर्जर्स एंड एंटी डिफेक्शन लॉज. स्प्लिट्स, मर्जर्स एंड अलायंस हैव फ्रीक्वेंटली डिसरप्टेड द कंपोजिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. This has led to a number of disputes over which the section of divided party gets to keep the party symbol and how to classify the resulting parties in terms of national and state parties. Election Commission has to resolve these disputes, although its decisions can be challenged in the court. लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजन होंगे ऐसे डिस्प्यूट्स में वो चैलेंज करे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं चैलेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया जुडिशल रिव्यू इम्प्लाइज. कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो आंसर है कि इन इंडिया जुडिशल रिव्यू इम्प्लाइज द पावर ऑफ जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. ठीक है. डिटेल देखते हैं कि जुडिशल प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस अंडर विच एग्जीक्यूटिव एंड इन सम कंट्रीज लेजिस्लेटिव एक्शंस आर सब्जेक्ट टू रिव्यू बाय द जुडिशरी. ठीक है. द पावर ऑफ कोर्ट्स टू असेस वेदर अ लॉ इज़ इन कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. हाँ, a court with judicial review power may invalidate laws and decisions that are incompatible with the higher authority, and executive decisions may be invalidated for being unlawful, or a statute may be invalidated for violating the terms of a written constitution. Judicial review is one of the checks and balances in the separation of powers and the power of the judiciary to supervise the legislative and executive branches when the latter exceed their authority. ठीक है. The doctrine varies between jurisdictions, so the procedure and scope of judicial review may differ between and within countries. Next question है कि which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule in a state. तो 3 स्टेटमेंट है, 2 इसमें करेक्ट है. नंबर 1 के डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा आ गया कि दिस डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज़. ठीक है ना. हाँ, कि दीज आर नॉट नेसेसरली द कंसिक्वेंसेस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट. ठीक है. हाँ, प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लग जाए, हाँ, तो एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी है कि रिमूवल ऑफ कौंसिल मिनिस्टर इन अ स्टेट. ठीक है ना. ये होगा, कौंसिल मिनिस्टर हटाए जाएंगे, मतलब ये जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व नहीं होगी और लोकल बॉडीज़ भी डिसॉल्व नहीं हो सकती हैं. ठीक है. आगे सर्कमस्टेंसेस डिपेंड करती हैं. डिटेल में देखते हैं आंसर इसका कि डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज़ इज़ नॉट नेसेसरली एन आउटकम ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. At proclamation of emergency of this type, only suspension of the assembly or council of ministers can take place pending its approval by the parliament and the judicial review of the proclamation. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India.
तो आंसर है कि नंबर 1 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, और 2 इसमें इनकरेक्ट भी हैं, वो हैं एक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये इनकरेक्ट हैं। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23 and 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Right to personal liberty is never real if some people are exposed to right to personal liberty is never real if some people are exposed to exploitation by others। ठीक है, आर्टिकल 23 and 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर डिजाइन टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन। ठीक है, एक बंदा दूसरे को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, आर्टिकल 23-24 में है। आर्टिकल 23 अलग अलग देखते हैं इनका। ठीक है ना, आर्टिकल 23 में है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, हाँ, देन ट्रैफिक मतलब कि हाँ कि इंसानों को बेच नहीं सकेगा, ज़बरदस्ती उनसे काम नहीं लिया जाएगा, ये आर्टिकल 23 में है। ठीक है ना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, देन आर्टिकल 24 जो है आर्टिकल 24, इट फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज आर इन हैजर्डस वर्क्स। ठीक है, द आर्टिकल स्टेट्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री आर माइन आर इंगेज्ड इन एनी अदर हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, next question is, what of the following statements choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of government। ठीक है, तो आंसर है कि करेक्ट आंसर है कि a mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government to the people। ठीक है, डिटेल में आंसर देखते हैं कि the principle of collective responsibility finds place in article 75 clause 3 where it is stated that the council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha। ठीक है, in other words this provision means that the council of ministers which loses confidence of the Lok Sabha is obliged to resign, the ministers fail and stand together, minister fall and stand together। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो कुछ ऑप्शन हैं उनमें जो करेक्ट है, मतलब कि जो कि इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है, वो ये है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग दी फेडरेटिंग यूनिट्स, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी जो इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स हैं वो हैं, नंबर 1 देयर इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, यस, देन पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यस, देन फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन unequal representation in the राज्य सभा, यस। डिटेल में देखते हैं कि द मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? द मेन फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है? मेन फेडरल फीचर, नंबर 1 रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिवीजन ऑफ पावर्स, देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये 4 जो हैं क्या है मेन फेडरल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है ना, देन फेडरलिज्म इन इंडिया हैड नॉट बीन द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द यूनिट्स एंड द कंस्टिट्यूंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन हैड नो राइट टू सेसीड फ्रॉम इट। ठीक है, अलग नहीं हो सकते जैसा अमेरिका में है। ठीक है, इंडिया में वैसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय, आंसर है कि इट इज़ फिल्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कंस्टिट्यूंसी। ठीक है, ही कैन नॉमिनेट पेपर इन लोकसभा। ठीक है, डिटेल में देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंटेस्टिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स MLA एंड फॉर लोकसभा आर, नंबर 1 ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही आर शी। ठीक है ना, then minimum age for contesting the election is 25 years in both these cases. ठीक है, then a candidate should be registered as voter. ठीक है ना, yes, इसमें 2 सब टाइप में हैं कि if he or she wants to contest election for MLA it is mandatory to be registered as a voter in at least one of the constituencies anywhere in the state. ठीक है, then number 2 इसमें है कि if he or she wants to contest election for parliament member
he or she can be registered in any state and can contest from any of MP constituency in the state. ठीक है. Then फोर्थ पॉइंट है कि कैंडिडेट शुड नॉट बी अ क्रिमिनल. हाँ, जो 4 क्राइटेरिया थे, नंबर 1 इंडियन सिटीज़न, देन मिनिमम एज 25 साल, देन ये 2 क्राइटेरिया जो मैंने बताया, ठीक है ना, कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए वोटर. देन नंबर 4 कि कैंडिडेट शुड नॉट बी of a criminal background, that is he or she should not have been jailer for more than 2 years. 2 साल से ज़्यादा जेल में नहीं गया होना चाहिए. मोर देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल में, ठीक है, 2 साल से ज़्यादा जेल में इम्प्रिजन नहीं हुआ होना चाहिए. इन दैट केस ही इज़ हर कैंडिडेचर वुड बी डिसक्वालीफाइड. अगर ऐसा है, उसकी कैंडिडेचर जो है डिसक्वालीफाइड हो जाएगी. ठीक है, 2 साल से ज़्यादा जो है वो किसी जेल में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ के विद रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988, दैट इज़ PBPT एक्ट. ठीक है ना, कि विद रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988 PBPT एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल विच ऑफ द गिवन इज़ करेक्ट. ठीक है, ये याद रखना, शार्ट में इसको बोलते हैं PBPT एक्ट. PBPT एक्ट मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988. PBPT एक्ट 1988. ठीक है ना, इसके रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हैं, बताना कौन सी सही है. और इनमें से 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, करेक्ट सिर्फ एक ही, और वो है कि प्रॉपर्टीज़ हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट. यस, ये सही है. हाँ, तो 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हैं. उनमें यह है कि अ प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन इज़ नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांसैक्शन इफ़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांसैक्शन. यस, हाँ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद है कि द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 अथॉरिटीज़ फॉर इन्वेस्टिगेशंस बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म. ये भी इनकरेक्ट है. डिटेल में देखते हैं कि हाँ, कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988 हैज़ बिन अमेंडेड बाय द बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016. ठीक है, इसको बोलते हैं BTP अमेंडमेंट एक्ट 2016. ठीक है ना, द रूल्स एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ BPT. ठीक है, मीन्स दिस अमेंडमेंट जो हुआ बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016. ठीक है, BPT एक्ट अमेंडमेंट एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन November 1, 2016 में. ठीक है ना, आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द BTP अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है ना, आफ्टर कमिंग इनटू इफेक्ट ऑफ द BTP मीन्स बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है ना, द एग्जिस्टिंग बेनामी ट्रांसैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 शैल बी रीनेम्ड एज प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988 PBPT एक्ट 1988. हाँ, विद रेफरेंस टू द अबाउट डेफिनेशन ऑफ, जो ऊपर मतलब के 3 स्टेटमेंट बताई, उसके रिलेटेड देख लेते हैं. पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी. ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आ प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन विल बी ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांसैक्शन इफ़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ अवेयर और नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांसैक्शन. उसके बाद था कि एज पर द 2016 अमेंडमेंट एक्ट प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल टू कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन. Then an appellate mechanism has been provided under the PBPT Act in the form of adjudicating authority and appellate tribunal. तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई है. इसमें हमारे जो हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो के साथ ख़त्म हो गए. अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड करेंगे. तो उम्मीद है कि काफ़ी जो है आपको इससे सीखने को मिला होगा इस वीडियो से. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. अल्लाह हाफिज़.